Hello and welcome to the YouTube channel of Tathagat IAS. Previously, we have discussed the syllabus of public administration, that is Unit 5 of Paper 2, as well as we discussed definition of administration, public administration. We understood the difference between administration and public administration. In the last lecture, we defined public administration according to the perspective given by Woodrow Wilson and L.D. White. So these two definitions will be helpful for you in solving 3-mark question related to public administration. In this particular video, in this particular lecture, we'll discuss the definition given by F.A. Negro about public administration. In the last lecture, I have told you that the definition given by F.A. Negro is the broad definition of public administration. He included various perspectives in the definition, and this definition of F.A. Negro of public administration, a definition given by F.A. Negro of public administration, is regarded as a broad definition, is regarded as a wholesome definition of public administration. So we will understand what all are the perspectives given by F.A. Negro in this particular definition of public administration. I will also explain the meanings of various terms used by him in the public administration definition. So first of all, let's try to read the first sentence which of the definition of public administration, in which F.A. Negro says that public administration is a cooperative group effort in public setting. Now the term here is a cooperative group effort, and as we are all aware that the administrative activity is a cooperative activity, it's a coordinated activity, it's a coordinated effort in an organization. In the last lecture, I have given you the example of agriculture department, how agriculture department implements the scheme formulated at the top level by the bureaucrats and the government agencies, and any particular activity of any governmental agency can be termed as a cooperative group effort, can be termed as a coordinated group effort, which is controlled by higher ranks or higher administrative officers. So this is the first sentence. F.A. Negro says that it is a cooperative group effort. So this is clear. I have explained the meaning of cooperation, meaning of cooperative group effort in the definition of administration as well as public administration. So there is no need to further explain the term. Another word coming here is public setting. Now what is the meaning of public setting? Public setting is any public office. पब्लिक ऑफिस कोई भी किसी भी प्रकार का एक पब्लिक ऑफिस वहां पे हो सकता है. जैसे कल के हमारे एग्जांपल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, डिफेंस का कोई वहां पे डिपार्टमेंट हो सकता है, होम मिनिस्ट्री का कोई वहां पे डिपार्टमेंट हो सकता है. उस पब्लिक सेटिंग में कोई भी किसी भी प्रकार का एक ग्रुप एफर्ट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल है. ये पहले सेंटेंस का मीनिंग है. सीधा सीधा सा क्लियर सा मीनिंग, क्लियर सा सेंटेंस वहां पे दिया हुआ. नेक्स्ट चीज वहां पे बोली जा रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नेंस, ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, that is executive, legislature and judiciary. These 3 are basically the pillars of the state, LEJ as we popularly call them. Some thinkers are there in public administration who says or who are of the opinion that public administration only covers the activities of executive and not legislature and judiciary. But in this particular definition, F.A. Negro tells us that public administration covers all the 3 branches of the government, all the 3 branches of the state, that is L, E and J. I will explain how these 3 branches are part of public administration. See, I will give you an example of this. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम है, सबसे पॉपुलर अपनी स्कीम मान लो आज की डेट में जो हेल्थ सेक्टर के अंदर चल रही है, आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, जन आरोग्य योजना बोलो, जन आरोग्य मिशन बोलो, ठीक है. अब ये जो भी योजना है, कहीं ना कहीं इसका जो रूट्स हमें देखने को मिलेंगे. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला कि जो भी आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, जो मैनिफेस्टो के आधार के ऊपर वो चुनाव जीत के आए हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हमें कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोविजंस वहां पे देखेंगे. वहां पे रूट्स हमें पॉलिसी के जनरली देखने को मिलते हैं. फिर वहां पे मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में रहने वाले लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते से सस्ते दाम में दिया जाए. उसके लिए वो एक वहां पे पॉलिसी लेके आए. अब ये जो पॉलिसी होती है, ये डिसीजन किसका था? तो ये डिसीजन था एग्जीक्यूटिव का, ठीक है. अब ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन, एग्जीक्यूटिव कौन? इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं.
कल मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होंगे आपके, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होंगे? पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को संभालने वाले जो भी मिनिस्टर होंगे, और पीएम, उन्होंने डिसीजन लिया कि भारत के अंदर ऐसा एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम लाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक इंश्योरेंस कवर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे मिल सके। इसके लिए योजना वहां पे लाई गई, डिसीजन एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया। अब उस पॉलिसी के अंदर कैसे कौन बेनिफिशरीज होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज किस प्रकार से होगा, अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज किसको दी जाएगी, साथ साथ अगर कोई किसी को एक्सक्लूड करना है तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी जो बारीकियां होती है, ये बारीकियां डिजाइन करने में हेल्प आपको मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से, जो हमारे बेसिकली पॉपुलरली हम उनको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ये ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करने में इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद करेंगे। अब मान लो इसके ऊपर अगर कोई लॉ लाया जाता है, तो लॉ तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बस पास नहीं करा जा सकता। लॉ अगर आपको पास करना है तो उस लॉ को आपको लेजिस्लेचर में लाना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको उसको लेके आना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा ऐसे दो सदन अपने पार्लियामेंट के अंदर है। इस पार्लियामेंट के अंदर मान लो अगर आप लॉ लाते हो, तो इसको फिर वहां पे दोनों सदन में, दोनों हाउसेस में उसको पास करना पड़ेगा, कोई भी रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ, ठीक है। यहां के बाद फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट की साइन होती है तो जो भी बिल होता है आपने जो पार्लियामेंट में लाया था, वो बिल लॉ के अंदर, लॉ के रूप में तब्दील हो जाता है, ठीक। अब ये जब लॉ आता है तो लॉ के अंदर भी जब पास होता है, प्रेसिडेंट की साइन होती है, तो लॉ को इंप्लीमेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करने का भी काम होता है, जिसको पॉपुलरली हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। और इसमें भी महत्वपूर्ण रोल ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेट्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है, ठीक। अब अगर अपन देखते हैं तो इसको अगर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है कोई भी योजना, मैं बस ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के लिए कोई लॉ पास कर दिया गया, मैंने बस आपको एग्जांपल वहां पे दिया है। ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव के द्वारा पॉलिसी डिसीजन लिया गया, तो फिर मान लो हो सकता है कि कोई लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट होगी, लॉ पास करना पड़ेगा अगर उस मसले में, तो बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर वो पास होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होगी, और उसके बाद इंप्लीमेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। एग्जीक्यूटिव का जो पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन था, पॉलिसी के लिए डायरेक्टिव था, वो एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शामिल है। लेजिस्लेचर का भी सहभाग हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में देखने को मिल रहा है। और अगर कल जाके किसी ने मुद्दा उठाया कि भाई आपने कुछ लोगों को आर्बिट्ररीली इस पर्टिकुलर पॉलिसी से एक्सक्लूड किया है, किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी का आर्टिकल 14 के अंदर दिया हुआ फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट right to equality, and if some group of citizens believe that this particular policy has violated their right to equality under article 14 of the constitution, then according to that particular provision, or according to the power given by the fundamental rights, according to the power given by the part 3 of the constitution to people of India, to the citizens of India, that you can approach Supreme Court in this particular context, कि आपको अगर लगता है आपका वायलेट हुआ है राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर ऐसा लॉ आपको लग रहा है कि इस लॉ ने, जो भी ये लॉ पास किया गया, ये आपके, इसने वायलेट किए हैं फंडामेंटल राइट, वायलेटी ऑफ फंडामेंटल राइट है मान लो ये लॉ, तो आप पहुंचे कहां पे? जुडिशरी के पास। सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहां पे पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि चलो ठीक है, आपने ये जो भी बेनिफिशियरीज इंक्लूड करे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आपने इसमें से आर्बिट्ररीली एक्सक्लूड किया है, कुछ लोगों को आपने, कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटिव व्यवहार स्टेट के द्वारा वहां पे हुआ है। ऐसे मसले में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये जो भी आपने लॉ पास किया था, जो आपके एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के आधार के ऊपर बना था, इस लॉ को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, बोल सकता है कि भाई ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के वायलेट कर रहा है, आप इसमें तब्दीली लाइए। तब तक तो हम इस लॉ को मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स which are granted by Constitution of India। सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स वहां पे है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए पूरे प्रोसेस में अगर हम देखते हैं, ये जो भी प्रोसेस चल रही है, एक योजना बना के उसको लॉ बना के फिर वो लॉ को चैलेंज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ई का भी शामिल हमें, मतलब ई का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, वहीं पे एल का भी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आखिरी में हमें जे का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है,
तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन तीनों जो घटक है, तीनों जो आपके पिलर्स है स्टेट के, इन तीनों का पार्टिसिपेशन हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा आप ये समझ सकते हैं। अगर मैं पूरा प्रॉपर एक इसके लिए एग्जांपल दूं कि जिसका पॉलिसी डिसीजन लिया गया एग्जीक्यूटिव के द्वारा, फिर वो लॉ बना और फिर वो लॉ नलिफाई किया गया, तो आपको पता होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाके कि भाई जो अपने जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है, अपॉइंटमेंट जो होती है जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी में, उस अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का बिल, जो कि एक्ट में तब्दील हुआ, हाईएस्ट मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रैटिफाई किया, और उसके बाद उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला this particular law passed by the parliament, assented by the president of India, is violative of the principle of independence of judiciary, and that is why we struck down this particular law. This was the explanation given by the Supreme Court, Honorable Supreme Court, in this particular case of NJSC. NJSC was nullified. It was violative of the constitutional principles, or it was violative of the basic structure of the constitution, as was said by the Honorable Supreme Court. तो आप देखिए यहां पे एग्जीक्यूटिव शामिल था, लेजिस्लेचर शामिल था, और अगेन फिर वहां पे अल्टीमेटली जुडिशरी का भी पार्टिसिपेशन आया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है, कहीं ना कहीं इसमें भले ही मेन रोल आपका एग्जीक्यूटिव अदा करे, मेन रोल एग्जीक्यूटिव के द्वारा चलाया जाए, लेकिन बाकी जो दो ऑर्गन्स है स्टेट के, एल और जे, इनका भी शामिल, इनका भी पार्टिसिपेशन हमें उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में देखने को मिलता है। और यही कारण है कि एफए निग्रो ने उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो यहां पे लिखा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की मैं बात करता हूं, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अल्टीमेटली, जब प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अल्टीमेटली साइन होनी है। वो कलेजियम सिस्टम पूरा अपॉइंटमेंट का बना हुआ है, उनके द्वारा रिकमेंडेशंस जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करेंगे। जो जुडिशरी के अंदर लोग बैठेंगे, कौन जज होंगे, कौन चीफ जस्टिस होंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में तो से एग्जीक्यूटिव का वहां पे रहता ही है। ऐसे में कोई भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती है, लार्जर रोल आप बोल सकते हो कि भाई चलो आपका एग्जीक्यूटिव प्ले करता है, लेकिन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आल्सो प्लेज देयर पार्ट, आल्सो प्लेज देयर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये उस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग वहां पे बोली जा रही है एफए निग्रो के द्वारा इस डेफिनेशन में, कि पब्लिक पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड इज दस ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे को उन्होंने टच किया कि कैन वी टर्म और कैन वी से दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। आज की डेट में अगर मैं आपको पूछूं कि एज अ ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, क्या आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रह पाएंगे या फिर आप पॉलिटिकल साइड लेंगे? अगर हम एथिकली, मोरली अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर देखते हैं, तो ज्यादातर आंसर ये आएगा कि नहीं नहीं, हम तो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना संभव है? क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है? क्या ये प्रैग्मेटिक है आपका बोलना कि हम पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे? तो कई थिंकर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया, कई थिंकर्स ने इसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया, देखा, प्रोसेस को समझा, और ये जाना कि एब्सोल्युटली पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल इन द रियल्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स are interlinked, are so intensely intermingled that we cannot say that the administrators are not a part of political process. बेसिकली बात अगर देखी जाए तो होम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए होम सेक्रेटरी है, जो कि आईएएस रैंक, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। साथ साथ जो अपनी कैबिनेट होती है, प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो जो अल्टीमेट गोल है नेशनल डेवलपमेंट का, नेशन डेवलपमेंट का, नेशन बिल्डिंग का, कैसे हम वो अचीव कर पाएंगे? अगर ब्यूरोक्रेट्स किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कुछ अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक बराबर से इनका अगर मान लो इंटरलिंकिंग नहीं है, गोल्स जो है वो यूनिफाइड नहीं है, तो ऐसे में देश के लिए वो घातक साबित हो सकता है। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन पे ऊपर चलना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर कंट्रोल रहना,
एडमिनिस्ट्रेटर्स का अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल मैनर में करना, ओपन मैनर में करना, ये नेसेसरी है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीजें जो है बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे एफ ए निग्रो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया। शुरुआती फेज यानी कि 1887 से 30 साल आगे तक का जो फेज था उसमें बिलीव किया जाता था, जो वुड्रो विल्सन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उनको, उनके द्वारा उनके द्वारा ही प्रोपाउंडेड एक थ्योरी थी और बाकी थिंकर्स ने भी उसको मतलब एग्री किया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। ये शुरुआती फेज में बिलीफ था। वुड्रो विल्सन का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है बेसिकली वो अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ऐसा मानना था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे एक तरीके से अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिक्स का काफी एक अटूट रिश्ता बनता गया, एक इंटैक्ट रिश्ता वहां पे बनता गया। और आज हम इस कदर इस फेज तक पहुंच गए हैं कि आज की डेट में अगर आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने जो है उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, और आज की डेट में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखना कोई ऐसा गुनाह नहीं है, कोई इलीगल चीज नहीं है। आप अगर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हो बीइंग अ ब्यूरोक्रेट कि आफ्टर रिटायरमेंट में जो है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा, तो जस्ट रिटायरमेंट के बाद आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसके लिए पहले जब आप ब्यूरोक्रेट रहोगे तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस आपको एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, कुछ लोगों के गुडविल में आपको आना पड़ेगा, तब ना जाके आप वहां पे ब्यूरोक्रेट से सीधा फिर आप पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है आज की डेट में, ऐसे कुछ मिनिस्टर्स है कि जो पहले ब्यूरोक्रेट रहे और आज वो मंत्री है, आज वो मिनिस्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रूव करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, बस मैं ये बोल रहा हूं कि पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एडमिनिस्ट्रेटर्स का और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का साथ में आना और एक यूनिफाइड गोल के साथ साथ में आना ये जरूरी होता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। और इसी कंटेक्स्ट में एफ ए निग्रो ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इज दस ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट चीज एफ ए निग्रो कहते हैं कि द फील्ड एंड प्रैक्टिस हैज बीन मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इन द रीसेंट टाइम। अब ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो है एल्टन मायो वगैरह की थ्योरीज आएंगी, मेरी पार्कर फोले के द्वारा कुछ थ्योरीज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में आएंगी आगे, जैसे उसके ऊपर एक टॉपिक अपना आएगा साइंस और आर्ट और साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, तो उसमें मैं आपको ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बारे में डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यहाँ पे दिख रहा है। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो एंगल दिया गया था, जो पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेशन समझा जाता था, वहां पे माना जाता था कि मैकेनिकल है, मतलब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल है उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को इंक्लूड ही नहीं किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के एफिशिएंसी के लिए बोलो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्टिवनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के उस रियाल में, उस सेट में, कि जो भी ह्यूमन है दोज आर ओनली कॉग्स इन द मशीन, कि उनको एज अ मशीन, एज अ रोबोटिक ट्रीटमेंट वहां पे दी जाती थी, उसके हिसाब से पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करी जाती थी। वो बिलीव था बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का, कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वहां पे बस हमने देखनी है, बाकी क्या करने वाले हैं वो किस प्रकार से इमोशंस वर्क प्लेस के ऊपर रोल प्ले करते हैं, इसको नजरअंदाज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव थेरिस्ट्स द्वारा। और इसी चीज को, जो एक वॉइड था इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव में, इस वॉइड को फिल करने का काम किया ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के थिंकर्स ने। इसलिए वो भी पॉइंट वहां पे एफ ए निग्रो ने इंक्लूड किया है कि एज अ फील्ड और प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इन रिसेंट टाइम। ठीक, और लास्ट पॉइंट में एफ ए निग्रो कहते हैं कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इकोलॉजी में काम करता है, एक इकोसिस्टम में काम करता है, और उस इकोसिस्टम के अंदर प्राइवेट ग्रुप्स भी शुमार है, प्राइवेट ग्रुप्स के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इनके साथ मिलकर, इनके साथ भी इंटरलिंकिंग हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है। और साफ सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पीपीपी प्रोजेक्ट सीधा सीधा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का एग्जांपल है। क्या कह रहे हैं एफ ए निग्रो यहाँ पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। पीपीपी मैंने जैसे एग्जांपल बताया आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज की डेट में बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे हमारे देश में चल रहे हैं, रोड कहीं पे प्रोवाइड करना है, नेशनल हाईवे बिल्ड करना है, पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, या फिर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चलाना है, तो यहाँ पे भारत सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी के कारण बोलो
या फिर भारत सरकार ने जो भी उद्योग चलाए, जो भी काम करे, उसके अंदर एफिशिएंसी कम रही, इस कारण से बोलो, और भी कारण कि भारत सरकार आज की डेट में प्राइवेट प्लेयर्स को उन सर्विसेज को प्रदान करने में अपने साथ इंक्लूड कर रहा है, और यही चीज एफए निग्रो के द्वारा यहाँ पे बोली जा रही है। तो इसी का एग्जांपल अपन पीपीपी बोल सकते हैं। कुछ जगह पे होता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हो, वहां पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, जो अपने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज है बेसिकली प्रोग्राम के, उनको भी वहां पे इंक्लूड किया जाता है। प्राइवेट ग्रुप्स ही है बेसिकली। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मनरेगा प्रोग्राम को आप जानते होंगे। मनरेगा प्रोग्राम के अंदर जो ऑडिट होता है, कई जगह पे सोशल ऑडिट का नाम उसको दिया गया है। और ये सोशल ऑडिट के द्वारा होता क्या है कि जो एक्टिविटीज मनरेगा प्रोग्राम के अंतर्गत की गई एक पर्टिकुलर एरिया में, और जो भी लोग वहां पे शामिल है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बनाया, मान लो प्रोजेक्ट वहां पे कोई उन्होंने रोड बनाया, या फिर मान लो कहीं पे डैम बनाया, कहीं पे कोई पर्टिकुलर बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर वहां पे बनाया, तो वहां पे जब ऑडिट होता है तो गवर्नमेंटल एजेंसी ने वहां पे लोगों को उस ऑडिट में शामिल किया है। इस प्रोसेस को ब्रॉडली अपन सोशल ऑडिट वहां पे बोलते हैं। अगेन गवर्नमेंट इज basically willing to participate, to make people participate in the policy formulation, policy implementation and policy evaluation. So we can say that the government's approach is changing from basically the top down approach is changing from to a bottom up approach. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और यही चीजें हमें बेसिकली इस पॉइंट से, जो लास्ट पॉइंट एफए निग्रो ने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में, उसी से ये अपने को समझ में आता है। ठीक है, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स वहां पे एफए निग्रो ने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के द्वारा दिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, जैसे यूनिट 5 में, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर के लिए, तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा कंटेंट एफए निग्रो ने अपने डेफिनेशन के माध्यम से दिया हुआ है। यहां से आप 2 से 3 पॉइंट्स उठा सकते हैं, और जो हमने पहले भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन हो, एल डी वाइट की डेफिनेशन हो, वहां से कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुल मिला के 5 से 6 पॉइंट्स अगर आप एक डिस्टिंक्ट नेचर के इंक्लूड करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो वहां पे समझ में आया होगा। जो आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आप मिस करे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी बनाते रहिएगा, तो आपको यूनिट 5 जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बाकी पहले के 4 वीडियोस अपन ने बनाए हुए हैं, उन 4 वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।